Hello students, today we are on our very first chapter of statics, concepts of economics and significance of statics in economics. As we know, statics is having immense importance in our life. None work can be done without statics because statics means to say numerically expressions of the any problem. Suppose there is unemployment in the economy. If we are not collecting the data related to the unemployed people, then we can't solve the problem. So very first work related to solution of unemployment problem is collection of the data. So I can say that statics is important in all the spheres of the life. We have to use statics in each and every work, even in our daily routine life. But before doing the statics, before giving the introduction related to statics, we have to come to know about some basic concept of economics, because statics is important in our economy. और ये सिलेबस में है भी, बटे हमारे पास जो बुक है दैट इज ऑल्सो स्टैटिक्स इन इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स, ये मतलब कि हमारे पास टॉपिक है. इससे रिलेटेड जब हम बेसिक कंसेप्ट करते हैं, द वेरी फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज कंज्यूमर. हु इज कंज्यूमर? हु कंज्यूम्स गुड्स, हु कंज्यूम्स गुड्स फॉर direct satisfaction of needs, direct satisfaction of needs. Who utilize the goods? Who consumes the utility among goods? Who spends the money for direct satisfaction of their needs? And what he do? He do consumption. Consumption means to say direct satisfaction of needs. Direct satisfaction of needs. Utilization of the utility is known as the consumption. Consumer is a person who do activity as consumption. Consumption is the very first economic activity. हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में ये किया भी था कि we are having 4 type of the economic activities. The very first is consumption, second is production, third is exchange and fourth is distribution. So इसमें हमारे पास कंज्यूमर जो है वेरी फर्स्ट पर्सन है who starts the economic activities. जब ये कंजम्पशन के लिए डिमांड करता है, at that time producer has to produce the goods for the satisfaction of consumers needs. Second activity is, या पहले हम प्रोड्यूसर कर लो. सेकंड पर्सन इज प्रोड्यूसर. हु इज प्रोड्यूसर? हु क्रिएट्स द यूटिलिटी अमंग गुड्स, हु क्रिएट्स यूटिलिटी अमंग गुड्स, और हु मेक्स द गुड्स यूटिलाइजेबल, हु डू सम एफर्ट्स टू मेक द गुड्स सेलेबल इन द मार्केट. That is known as the creation of utility among goods. वो करता क्या है बेटे? He do the activity as production. Production is the activity which is made by producer. Producer do the production by using 4 factors of production, that are land, labor, capital, fourth enterprise. These are the 4 factors of production. By collecting these 4 factors of production, producer can do the productions. And next thing is, that is saving. What is saving? We are having our income that is divided in 2 parts, consumption as well as saving. Consumption is that amount which we spend on the purpose of consumption for the satisfaction of our needs. But saving is that amount which we save, which we never consume. We can save it in our ऑन हैंड, मतलब कि हम अपने पास भी रख सकते हैं.
इसे हम बैंक में जमा करवा सकते हैं. If we keep this money along with us, that is known as the passive saving, and if we kept it in the bank, that is known as the active savings. और जो ये active savings होती हैं, that will go in the market in the form of investment, क्योंकि यहाँ से लोग जो हैं इस पैसे को लोन ले लेंगे और जो लोन लेंगे पैसा, वो पैसा इन्वेस्टर्स उसे इन्वेस्टमेंट के लिए यूटिलाइज करते हैं. Saving is that amount which is not consumed but saved for the future use और future purpose. उसे हम अपनी future safety के लिए भी अपने पास संभाल के रख सकते हैं. बट जब भी उसे हम सेव करते हैं, we keep that money in the banks. और बैंक से यहाँ से इन्वेस्टर्स उसको लेके जाते हैं. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इज दैट अमाउंट ऑफ द सेविंग्स या इनकम which is not neither saved nor consumed but used for the further production process. उसे हम आगे और कामों के लिए यूटिलाइज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई फैक्ट्री बनानी है, उसके लिए यूज कर लिया. ठीक है, उस फैक्ट्री में हम जो पैसा यूज करेंगे दैट इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट. कोई भी प्रोड्यूसर अपनी किसी भी तरह की प्रोडक्शन के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस करता है दैट ऑल आर नोन एज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उससे आगे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अप होता है, प्रोडक्शंस होती हैं जिससे जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज होती है, इकोनॉमी में सर्कुलेशन जो है वो फास्ट होती है. दैट इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट इज these all are known as the economic activities. Next is exchange. What is this exchange? Producer has made the productions. वो productions करने का कोई फायदा नहीं जब तक वो प्रोडक्शन मार्केट में नहीं जाएगी. जब वो चीज मार्केट में जाएगी तो उसे क्या करेगा, कंज्यूमर्स उसको परचेज करेंगे. परचेजिंग मतलब पैसे देना और चीज लेना. Exchange is the activity which is related to give and take. Consumer will buy the good by paying the price for that commodity, that is exchange. The producer will give the good by taking the money from consumers, that is known as the exchange. Because without exchange purpose, producer will never do the production. Because producer is rational person, he always wants to get maximum profits, so he will do the production to sell that in the market and to earn profits. जब मार्केट में चीज जाएगी बेटे, उससे क्या होगा, प्रोड्यूसर के पास थ्रू एक्सचेंज he will be able to get money. Then that money will be distributed among consumers, among factors of productions in the form of rent will go to landlord, wages will go to laborer जो अपनी सर्विसेज देते हैं बेटे, rate of interest will go to capitalist, and the rest of the surplus income will go to the owner or entrepreneur in the form of profit. This is known as the distribution of income. Distribution is also economic activity. ठीक है, इसको करने के लिए we will distribute our amount of money earned by exchange through production from consumer. These all are interconnected. These all activities are interconnected. ठीक है, जब इसीलिए हम इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्लोज इन अ सर्कल. सर्कल में कैसे बेटे, आप लोगों के पास वांट्स है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए यू विल पुट योर एफर्ट्स. एफर्ट्स करने से यू विल बी एबल टू अर्न वेल्थ. वेल्थ जो है दैट विल बी यूज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, एंड वन नीड इज सेटिस्फाइड, द अदर नीड्स विल अकर साइमल्टेनियसली. These are known as the economic activities, and this is known as the economic cycle. Why we do these economic activities? We do these economic activities because of scarcity of resources.
Resources are scarce. Wants are unlimited, but means for the satisfaction of these wants are very limited. That is why we need these economic activities. This is the biggest economic problem. Why economics occurs? Economics बेटा सब्जेक्ट है. ये सब्जेक्ट बना ही क्यों है? इसीलिए बना है because there are the scarcity. In it we take only scarce needs. और जरूरतों जो बड़े scarce नहीं है. For example, oxygen is unlimited in our environment. तो उसको परचेज करने की जरूरत नहीं है. उसको हम इकोनॉमिक्स में नहीं लेते. इकोनॉमिक्स includes only those needs which cannot be fulfilled. जिनको फुलफिल करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उन्हीं को हम इसमें इंक्लूड करते हैं. और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए कंज्यूमर जो है वो डिमांड करता है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शंस करता है, और उससे वो चीज मार्केट में एक्सचेंज होगी, और एक्सचेंज के थ्रू जितना भी पैसा आएगा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कहाँ से आते हैं बेटे? वो घरों से निकल के आते हैं बेटे, कंजम्पशन सेक्टर से निकल के आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से निकल के आते हैं. हम लोग प्रोड्यूसर भी हैं, हम लोग कंज्यूमर भी हैं. हम प्रोडक्शन भी करने में भी हेल्प करते हैं, हम कंजम्पशन भी करते हैं. ठीक है. सो दीज आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर. सो बाय दिस वे वी आर हैविंग our three distinct economic activities. We are having distinct components. These are the distinct components of economics which are related to consumption, production, distribution. But बीच में आप लोगों को exchange भी जरूर लेना है, because without exchange we are unable to do the distributions. ठीक है. exchange में हम goods की price fix करते हैं, but in distribution we will fix the price of our factors of production, which are four, like land, labor, capital and entrepreneur. Our next topic is related to statics. What is statics? Statics is a subject which helps us in numerical expressions of our problems. Poverty. How much the poverty is there in the economy? Without statics we can't do it. How much unemployment is there? Without statics we can't find a number of unemployed persons. Level of income and employment. Whether the economy is on the developing way or underdeveloping. It can be counted or it can be measured with the help of statics only. So statics is the way to find out our problems. It's a means, not end. Means मतलब कि it tells us related to problem. ये problem इतनी है, ऐसी है, but it never give us the solution. So statics is a mean, not an end. It tells us how to solve the problem, but never solve the problem. It never gives the solution of the problems. It merely tells what the problem was, what the problem is, what the problem will be. And now we are using our statistical tools in the singular sense. Statics in singular sense. It is having 5 statistical tools. The very first is collection of data. Collection of data is related to whenever we want to solve our problem. First of all, we have to collect the data. We are having 2 methods to collect the data. That is census method and sample method. ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे. सेंसस मेथड, व्हेन वी कलेक्ट द इंक्वायरी ऑफ ईच एंड एवरी आइटम. फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन सेंसस, घर घर में जाके हमें लोगों की कितने उनके फैमिली मेंबर्स हैं, कौन कौन से जॉब करते हैं, कौन से जॉब पे नहीं है, या कौन कौन से पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह. दीज ऑल द थिंग्स वी हैव टू कलेक्ट बाय यूजिंग द सेंसस मेथड. On the other hand, census method is a method when we collect the data
ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल्स। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अपनी बॉडी में HB चेक करना है, तो फ्यू ड्रॉप्स आर एनफ ऑफ योर ब्लड टू चेक हाउ मच HB इज देयर, हीमोग्लोबिन इन योर ब्लड। तो इस तरीके से वी आर हैविंग टू मेथड, सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड। द सेकेंड इज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, इट इज रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन, मतलब कि व्हेन वी डिवाइड द डाटा इन द डिफरेंट क्लासेस, क्योंकि जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो सारा आपके पास all together है। फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कलेक्ट द डाटा रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, देन वी विल क्लासिफाई द डाटा इन मेल एंड फीमेल। वी विल डिवाइड द डाटा इन डिफरेंट कैटेगरीज, ताकि हम लोग प्रॉपर तरीके से कलेक्शंस कर सकें, प्रॉपर तरीके से उससे रिलेटेड हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकें कि किस तरह के लोग ज्यादा अनएम्प्लॉयड हैं, या लिटरेट अनएम्प्लॉयड, इलिटरेट अनएम्प्लॉयड, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज। ये सब बेटे हम लोग क्लासिफिकेशन करने के बाद ही चेक कर सकते हैं कि हाउ मच द पीपल आर अनएम्प्लॉयड एंड व्हाट टाइप ऑफ द पीपल आर अनएम्प्लॉयड। द थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन of data. It is also known as presentation of data, because जब हम किसी डाटे को वेल ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे वी कैन यूज द वेज ऑफ टैबुलर मेथड, डायग्राम मेथड, डायग्रामिक मेथड और ग्राफिक मेथड। In tabular form, we arrange the data in different table forms like individual series, discrete series, continuous series। ये आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है बेटे सीरीज के बारे में, क्योंकि 10th क्लास तक मीन मीडियन मॉड तो आता ही है। तो टेबुलर फॉर्म में वी डिस्ट्रीब्यूट द डाटा इन द डिफरेंट टेबल फॉर्म्स लाइक इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें हम इंडिविजुअली हर एक आइटम को बराबर इंपॉर्टेंस देके हर एक आइटम को हम प्रेजेंट करते हैं। इन डिस्क्रीट सीरीज वी डिवाइड द डाटा इन फ्रीक्वेंसी एरे, जिसमें हम बताते हैं कोई आइटम बार बार आ रही है तो हम बता देते हैं कि दिस आइटम इज अकरिंग 2 times 3 times, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज when the data is in fractions, so at that time it is very tough to distribute that data in the discrete series, so or discrete array. So at this time we will make the continuous series to present that data in the tabular form. It is also related to table boxes में भी हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। It depends upon the nature of the data. In diagramic we are having bar diagram method, pie diagram method, pictogram. There are so many methods to present the data diagrammatically. ठीक है। And third is graphical method. In graphic method we present the data in the form of lines. These both methods are for comparison of the data. इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे बार डायग्राम में हम बार्स बना देते हैं, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसमें प्रोडक्शन इस ईयर में 1995 में 2005 यहाँ पे प्रोडक्शन कम हुई है और यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा हुई है। दीज आर द इन द फॉर्म ऑफ बार्स। इन ग्राफ्स वी कैन टेक द लाइंस के किस ईयर में प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, कैसे जो वो उसको प्रेजेंट करने के लिए वी कैन कंपेयर द 2 वैल्यूज और 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट फोर्थ, दिस इज अ वे टू प्रेजेंट द डाटा एंड द फोर्थ मेथड इज statistical tool is that is analysis of data. Analysis of data, जब हमने डाटे को टेबुलर फॉर्म में, डायग्रामिक फॉर्म में, ग्राफिक फॉर्म में, and the next thing is analysis of the data. Analysis of the data, whatever we have organized or presented in the organization, that was merely related to direction of the change. It just tells us that the value is increasing or decreasing. पिछले से वैल्यू इंक्रीज हुई है
या डिक्रीज हुई है, हम लोग उन दोनों को कंपेयर करते थे। बट इन एनालिसिस ऑफ द डाटा वी प्रॉपरली एनालाइज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कौन सी वैल्यू इंक्रीज हो रही है और कौन सी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। इसमें हम लोग मीन, मीडियन, मॉड, जो टेबल हमने यहाँ पे बनाए हैं उनको यूटिलाइज करके आगे मीन, मीडियन, मॉड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर्स, ये बेटे हमारे पास स्टैटिकल टूल्स हैं, इनको आप स्टैटिकल टूल्स बोलते हैं। इनकी हेल्प से हम कंपेयर कर सकते हैं कि वेदर द वैल्यू, एवरेज वैल्यू इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, द रिलेशनशिप इज दो वेरिएबल्स हैं उनमें रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, प्राइस इंडेक्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सो इट हेल्प्स अस इन मैथमेटिकली प्रूफ ऑफ द प्रॉब्लम्स विच वी हैव मेड द इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा में। सो ये मेथड जो है इसकी हेल्प से जब हम एनालिसिस कर लेते हैं तो लास्ट में हमारे पास जो फिफ्थ चीज आ जाती है दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा इज रिलेटेड टू कंक्लूजन्स, क्योंकि यहाँ पे आके हम कंक्लूजन्स फाइंड आउट करेंगे कि वैल्यू जो है इंक्रीज हुई है या आउटपुट इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। अगर इंक्रीज हुई है तो हाउ मच दैट हैज इंक्रीज्ड, अगर डिक्रीज हुई है तो हाउ मच दैट हैज डिक्रीज्ड। दीज ऑल आर नोन एज द स्टैटिक्स इन द सिंगुलर सेंस। These are used as statistical tools as in your book and this will go step by step. ये नहीं हो सकता कि हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा को पहले ले लें और क्लासिफिकेशन को बाद में ले लें। नो, इट विल गो स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए यहाँ पे स्टेप्स बने हुए हैं। फर्स्ट स्टेप में वी विल डेफिनेटली कलेक्ट द डाटा। इन सेकेंड स्टेप वी विल क्लासीफाई द डाटा। थर्ड स्टेप we will present the data. Fourth step, we will analyze the data. And fifth is the interpretation and it will go step by step. These are the stages, first, second, third and fourth, fifth stages. और उसमें statistical studies में ये पांचों methods आ जाएंगे और statistical tools में हमने हर एक statistical study के अंदर क्या क्या स्टडी किया है, कौन कौन सी वेज हमने यूज किए हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फॉर द कलेक्शन ऑफ द डाटा वी विल यूज द सेंसस एंड सैंपल मेथड एंड इन प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा वी विल यूज टेबुलर फॉर्म, ग्राफिक एंड डायग्राम मेथड। एनालिसिस ऑफ द डाटा में हम लोग मीन, मीडियन, मॉड या आप लोग परसेंटेज में, एवरेजेस में और कोरिलेशन, इस तरीके से डाटा को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हो, उसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करने की, मैथमेटिकली प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करते हो। एंड फिफ्थ स्टेज में इंटरप्रिटेशन में वी विल चेक द मैग्नीट्यूड, चेक द परसेंटेज चेंजेस एंड आफ्टर दैट वी विल कंपेयर द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स और मोर देन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आके अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। और जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास दैट इज द स्टैटिक्स इन द प्लूरल सेंस, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक में होगा बेटा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस अस ऑल।